Hello, students, and welcome to your English language class. I hope you all are doing good. Today, we'll read the second chapter of your literature book, Peter Pan. Now, Peter Pan is written by the famous author J.M. Barrie, and this is a short play. Now, as you all know, Peter Pan is a fictional character which has been created by the famous author J.M. Barrie. Peter Pan was a boy who does not wanted to grow up. He wanted to be a little boy always, so he ran away from his house to Kensington Garden and lived among the fairies there. Now, first of all, let us know about the main characters of this play. Peter Pan, he is the central character. Tinker Bell, who's a fairy, Wendy, and her two brothers, John and Michael. So these are the main characters of the play which we'll read today. Now you must have read about Peter Pan in comic books or must have seen some animated movies based on Peter Pan. The scene opens in a nursery where three children are sleeping. Now you know what a nursery is. It's a special room for small kids where they sleep or play in the daytime. Something uncanny is going to happen, for a quiver passes through the room, just sufficient to touch the night lights. Now it's a room where three children are sleeping, and something mysterious is going to happen because a slight movement or a slight shadow passes through the room, which is sufficient to touch the night lights. And it was touching the night lights, the night bulbs there in the room. जो तीन बच्चे हैं वो उस नर्सरी, उस छोटे से रूम में सो रहे हैं और वहाँ पे एकदम से एक स्लाइट मूवमेंट होता है, आवाज़ आती है और जो नाइट लाइट्स होती हैं उनको कुछ चीज़ जो है वो टच करती है. और जो नाइट लाइट्स हैं दे ब्लिंक 3 times one after the other and go out. There is another light in the nursery now, darting into drawers and the wardrobe looking for a certain shadow. अब वहाँ पे एक और रोशनी होती है उस रूम में, उस नर्सरी में, विच इज़ लुकिंग फॉर समथिंग इन टू द ड्रॉर्स एंड द वार्डरोब, एज इफ इट्स सर्चिंग फॉर अ सर्टन शैडो, और वो कोई शैडो को ढूंढ रहे हैं. देन द विंडो ब्लोज ओपन एंड पीटर पैन फ्लाइज इन टू द रूम. और तभी एकदम से जो विंडो है वो खुलती है और पीटर पैन ही फ्लाइज स्ट्रेट इन टू द रूम, और वो उड़ते हुए उस रूम में आता है. He is dressed in autumn leaves and cobwebs. और उसने कैसे कपड़े पहने होते हैं? उसने he is dressed in autumn leaves. और पत्ते और cobwebs क्या होते हैं बेटा? मकड़ी के जाले. तो उसकी जो ड्रेस है that's also very unusual. He is dressed up in autumn leaves and cobwebs. Now Peter says in a whisper, means he is speaking very softly, very slowly to Tinker Bell. Tinker Bell, Tink, are you there? Tink flashes hither and thither, here and there. Do you know where they put it? Now Peter is asking Tinker Bell, who's a fairy, and he's asking Tinker Bell that, do you know where they put it, where they have put the shadow? The answer comes as a tinkle of bells. It is the fairy language. Now Tinker Bell doesn't talk, and she uses tinkle of bells as a way of talking, as answering the questions. Which big box? This one? But which drawer? Yes, do show me. Now Peter जो है वो टिंकर बेल से पूछ रहा है कि वो शैडो कहाँ रखी हुई है, कौन से बॉक्स में, कौन से ड्रॉर में रखी हुई है. टिंक पॉप्स इनटू द ड्रॉर वेयर द शैडो इज. और टिंक जो जाके, टिंकर बेल जो है फेरी है, वो जल्दी से उस ड्रॉर में जाके उसको बताती है पीटर को कि तुम्हारी शैडो इसमें रखी हुई है. पीटर स्कैटर्स द ड्रॉर्स कंटेंट्स टू द फ्लोर. और पीटर जल्दी से उस ड्रॉर का जितना भी सामान होता है उसको फ्लोर पे बिखेर देता है. इन हिज जॉय एट फाइंडिंग हिज शैडो ही फॉरगेट्स दैट ही हैज शट अप टिंक इनसाइड द ड्रॉर. अब वो जल्दबाजी में और एकदम से जो उसको खुशी होती है अपनी शैडो वापस मिल जाने की, उसमें वो ये भूल जाता है कि उसने टिंक को उसी ड्रॉर में बंद कर दिया है. He sits on the floor, confident that his shadow will join him like drops of water. And he was expecting, Peter Pan was expecting that his shadow will join him
लाइक ड्रॉप्स ऑफ वाटर, कि वो पानी की तरह उसको फिर से ज्वाइन कर लेगी, उसकी जो शैडो है वो फिर से उस पर लग जाएगी. देन ही ट्राइज टू स्टिक इट ऑन विद सोप फ्रॉम द बाथरूम. दिस वेकन्स द गर्ल वेंडी. और वो बाथरूम में से सोप लेकर आता है और वो कोशिश करता है कि अपनी शैडो को फिर से स्टिक कर सके अपने ऊपर. लेकिन जब वो बाथरूम में जाता है तो उस आवाज़ से जो वहाँ पे गर्ल है वेंडी, शी वॉज स्लीपिंग इन द नर्सरी, शी वेक्स अप. वेंडी courteously means very respect crying. He jumps up and bows to her in the fairy way. Wendy bows to him from the bed. अब वेंडी जो है वो उससे बड़े रिस्पेक्टफुली पूछती है कि बॉय वाई आर यू क्राइंग, कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो. लेकिन जो पीटर है वो बड़े ही पोलाइट वे में उसके सामने झुकता है और वेंडी भी उसको झुक के और ग्रीट करती है. पीटर, व्हाट इज़ योर नेम? वेंडी मोयरा एंजेला डार्लिंग. व्हाट इज़ योर्स? पीटर पैन. इज़ दैट ऑल? Now, Wendy has a longer formal name than Peter, so she asks, "That is that all? कि तुम्हारा इतना ही छोटा सा नाम है?" Then Peter says yes. फिर Wendy politely बोलती है, "I'm so sorry," क्योंकि उसे लगता है शायद उसने उसे हर्ट कर दिया हो ये पूछ के कि तुम्हारा बहुत छोटा नाम है. Now Peter, it doesn't matter. Peter कहता है कोई बात नहीं. Wendy, where do you live, Peter? Now Wendy is asking that Peter, where do you live? Peter says, second to the right and then straight on till morning. Now this is a very weird way of telling your address. If you say second to the right and then straight on till morning, nobody will understand what you're trying to say. So Wendy replies that what a funny address. Is that what they put on the letters? कि तुम्हारा एड्रेस बहुत ही फ़नी साउंड कर रहा है. एंड क्या तुम्हें लेटर्स पे जो एड्रेस लिखते हैं वो यही होता है? Peter, don't get any letters. Peter says that I don't get any letters. मुझे कोई लेटर नहीं लिखता है. Wendy, but your mother gets letters. लेकिन तुम्हारी मम्मी के लिए तो लेटर्स आते होंगे ना? Peter, don't have a mother. Peter कहता है I don't have a mother. मेरी मम्मा नहीं है. Then Wendy says, Peter, no wonder you were crying. कि पीटर, मुझे लग रहा है शायद तुम इसीलिए रो रहे थे और चिल्ला रहे थे. Peter, I wasn't crying, but I can't get my shadow to stick on. मैं रो नहीं रहा था, ना चिल्ला रहा था, लेकिन जो मेरी शैडो है मैं उसको वापस अपने ऊपर स्टिक नहीं कर पा रहा था. Wendy, looking at the stop where he had lain. अब वो उसी स्पॉट पे देख रही थी जहाँ पे वो रखी हुई थी. Peter, you've been trying to stick it on with soap. कि तुम सोप से इसको स्टिक करने की कोशिश कर रहे थे. Sit here, I will sew it on for you. I dare say it will hurt a little. कि मैं इसको सीव कर देती हूँ, इसको मैं सिल देती हूँ तुम्हारे साथ, और लेकिन थोड़ा सा तुम्हें हर्ट होगा, थोड़ा सा दर्द होगा. Then Peter says, I never cry. She seems to attach the shadow. It awakes and is glad to be back with Peter as he is to have it. They dance together. He is showing off now. He crows like a cock. अब वो जब उसको सीव करती है वेंडी तो वो अटैच हो जाती है पीटर के साथ और फिर से वो लाइवली हो जाती है. जैसे पीटर कर रहा होता है वो उसको फॉलो करती है. दे वर डांसिंग टुगेदर एंड नाउ पीटर स्टार्ट्स शोइंग ऑफ एंड ही स्टार्ट बोस्टिंग अबाउट हिमसेल्फ. वेंडी, लुक ओ द क्लेवरनेस ऑफ मी. और वो अपने ऊपर बहुत घमंड करने लगता है और बड़े प्राउडली कहता है कि देखा मैं कितना स्मार्ट हूँ, मैं कितना क्लेवर हूँ. Now Wendy says as if I did nothing. अब वेंडी को बुरा लग रहा है सुन के कि पीटर जो है वो उसको क्रेडिट नहीं दे रहा है, उसकी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा है, बिकॉज शी वॉज द वन हु स्टिक द शैडो बैक टू पीटर, बट ही इज़ नॉट गिविंग हर एनी क्रेडिट. सो ही सेज एज इफ आई डिड नथिंग, जैसे कि मैंने कुछ भी नहीं किया. ना पीटर सेज यू डिड अ लिटिल, कि तुमने थोड़ा बहुत कुछ किया है, थोड़ा सा मेरी हेल्प की है. वेंडी सेज अ लिटिल. With one haughty leap, she is in bed with a sheet over her face. Now she feels humiliated, she feels insulted, and एक क्विक लीप लेकर एकदम वो तेज़ी से जंप करके वो अपने बेड में जाके सो जाती है और अपने फेस को बेडशीट से कवर कर लेती है. Popping on to the end of the bed, the artful one appeals. और वहाँ पे जो हमारा पीटर पैन है वो धीरे से जाके उसको अपील करता है, कहता है. पीटर सेज, वेंडी डोंट विदड्रॉ.
Withdraw means to stop interacting or talking. Now वो उसको रिक्वेस्ट करता है, वेंडी प्लीज़ डोंट विदड्रॉ, प्लीज़ डोंट स्टॉप टॉकिंग टू मी, आई कांट हेल्प ग्रोइंग व्हेन आई एम प्लीज्ड विद माई सेल्फ, आई कांट स्टॉप बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ व्हेन आई एम प्लीज्ड विद माई सेल्फ। जब मैं अपने आप पे बहुत खुश होता हूँ तो मैं अपनी बहुत तारीफ़ें करने लग जाता हूँ। वेंडी, वन गर्ल इज़ वर्थ मोर देन 20 बॉयज़, की एक लड़की जो है वो 20 लड़कों के बराबर है। वेंडी, पीपिंग ओवर द शीट, यू रियली थिंक सो पीटर? अब वो धीरे से शीट में से फेस अपना ऊपर करके पूछती है कि क्या तुम्हें सच में ये लगता है? नाउ पीटर सेज येस आई डू, कि हाँ मैं ऐसा ही सोचता हूँ। वेंडी, आई थिंक इट्स परफेक्टली स्वीट ऑफ यू एंड आई शैल गेट अप अगेन। अब वेंडी कहती है कि दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू, इफ़ यू थिंक दैट वेज अबाउट गर्ल्स देन आई शैल गेट अप अगेन, कि मुझे फिर से उठ जाना चाहिए। दे सिट टुगेदर ऑन द साइड ऑफ द बेड। पीटर, हाउ ओल्ड आर यू? नाउ दे आर चिट चैटिंग, they are talking with each other. Peter says, I don't know Wendy, I ran away the day I was born. उसने कहा मुझे अपनी एज नहीं पता क्योंकि जिस दिन मैं पैदा हुआ था उसी दिन मैं अपने घर से भाग गया था। Wendy, ran away? Why? Because I heard father and mother talking of what I was to be when I became a man. कि मैंने अपने मम्मी पापा को ये बातें करते हुए सुना था कि मैं बड़ा होके क्या बनूंगा। I only wanted to be a little boy always and to have fun. So I ran away to Kensington Gardens and lived among the fairies. और मैं इसलिए अपने घर से भाग के केंसिंगटन गार्डन्स आ गया और फेरीज के साथ रहने लग गया। वेंडी, यू नो फेरीज पीटर, कि तुम क्या परियों को जानते हो? पीटर, येस, बट दे आर नियरली ऑल डेड नाउ। यू सी वेंडी, when the first baby laughed for the first time, the laugh broke into 1,000 pieces. जब भी कोई फर्स्ट बेबी, जो सबसे पहला बेबी था, वो जब पहली बार हंसा था तो उसकी जो हंसी थी वो 1,000 पीसेस में ब्रेक डाउन हो गई थी और फेरीज में कन्वर्ट हो गई थी। एंड नाउ व्हेन एवरी न्यू बेबी इज़ बॉर्न, इट्स फर्स्ट लाफ बिकम्स अ फेरी। और जब भी कोई न्यू बेबी पैदा होता है तो उसकी जो लाफ है, उसकी जो लाफ्टर है, वो एक फेरी में कन्वर्ट हो जाता है। सो देयर ऑट टू बी वन फेरी फॉर एवरी बॉय और गर्ल। इसलिए हर एक जो भी बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है उसकी एक फेरी ज़रूर होती है। वेंडी, इज़न्ट देयर? सच में ये बात है। सो दिस वॉज द फर्स्ट हाफ ऑफ आवर प्ले पीटर पैन. Now you have to read this play and you have if you have any doubts you can ask me in the group, and you have to write the word meanings in your rough notebook, and we shall continue with the second half in the next video. Thank you for watching this video.